friends, today we will discuss a variable in C language and some other topics like constant, operators, literals, etc. So, first of all, what is variable? A variable is a data name which is used to store some data value or symbolic names for storing program, computations and results. The value of the variable can be changed during the execution. And the rule for naming the variable is same as the name identifier. Declaration of variable specify its name, data types and the range of the value that variables can store depends upon its data types. So आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं वो एक कंटेनर है जो डेटा को कंटेन करेगा. मीन्स वेरिएबल जो है मेमोरी में एक प्लेस का नेम है, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का एक नेम है, उस ब्लॉक में हम किसी वैल्यू को स्टोर कराएंगे. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वेरिएबल इज द मेमोरी लोकेशन नेम where we want to store some values. So how to declare a variable in C language? Its syntax is as follows. Variable name and then data type. इसका syntax क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा. Data type name of variable and then semicolon. For example, int a, character C, float f. What is int? Int is a data type and what is a is the name of variable. ऐसे ही character data type है, C जो है variable का name है, float data type है, f variable का name है. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं second variable is integer abc. abc एक integer type का variable है. variable initialization, variable को value कैसे initialize कराते हैं? when we assign any initial value to variable during the declaration, it is called initialization of variables. When variable is declared but contain undefined value, then it is called a garbage value. The variable is initialized with the assignment operator such as data type variable name equal ये assignment operator constant value. For example, integer a is equal to 20 और int a and a is equal to 20. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इस ए वेरिएबल को हमने 20 वैल्यू जो है वो असाइन की है. नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन कॉल एक्सेट्रा. इट कैन बी अरिथमेटिक, लॉजिकल and relational. For example, integer z is equal to x plus y. This expression is arithmetic expression. x plus y, x और y को हम एडिशन करा रहे हैं और इनका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो किसको प्रोवाइड करा रहे हैं? z को, या z में इनका रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं. arithmetic expression is greater than b, रिलेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, जी का कंपैरिजन बी के साथ कर रहे हैं. इज इक्वल टू बी लॉजिकल है. एफ ये फंक्शन ए कोमा बी, इट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल. ये फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट एक्सप्रेशन. So the expression 121 plus 17 minus 110 is a constant expression because
each of the terms of the expression is constant value. But if I were declared to be an integer variable, the expression 180 plus 2 minus 6 would not represent a constant expression. constant एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल को यूज किया गया है से को, और जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू वेरी करती है, यानी चेंज हो सकती है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। लेकिन 180 वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, 2 वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपकी कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है, जबकि ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। हम इसमें से किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। 121 को 121 ही लिखा जाएगा, 17 17 ही होगा, 110 ही होगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये वैल्यू यही रहेंगी, ये चेंज नहीं हो सकती। Now next, literals. What is literals? So literals in C language are data used for representing fixed values. They can be used directly in the code. For example, 1, 2.5, C, etc. Here 1, 2.5 and C are literals. Integer literals. Any integer is a numeric literal without any fractional or exponential part. There are 3 types of integer literals in C programming language. First one is decimal literal, second octal integer literal, and last is integer hexadecimal literal. डेसिमल जो नंबर होते हैं उनका बेस 10 होता है, मीन्स इनके अंदर जो डिजिट होती है वो 0 to 9 होती है। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, और इनके अंदर जो डिजिट्स रहती है वो 0 to 7 रहती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ऐसे हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं उनके अंदर डिजिट और करेक्टर का कॉम्बिनेशन रहता है। 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट यूज करेंगे और A से लेकर के F तक के करेक्टर यूज करेंगे। इस तरीके से इसका बेस कितना है? 16 है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर ये है 0, -9, 22 एक्सेट्रा आर इंटीजर डेसिमल नंबर। ऐसी ऑक्टल लिटरल जो है वो ये है 021, 077, 033 एक्सेट्रा। हेक्साडेसिमल नंबर इस तरीके से 0x7f, 0x2a, 0x521 एक्सेट्रा। In C programming language, octal start with A0 and hexadecimal start with A0x. अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर ऑक्टल होगा, और 0x से स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगी। Now, floating point literals. Simple floating point literals is a numeric literal that has either a fractional form or an exponent form. For example, -2.0, 0.000234, -0.22 e-5, not e-5 is equal to 10 to the power -5. 10 to the power -5. इस तरीके से लिखेंगे इसको। -5। Now, characters. A character literal is created by enclosing a single character inside single quotation mark. For example, AMF2. These are the करेक्टर्स। क्या पहचान है इनकी कि हम इनको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इंक्लोज करते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? करेक्टर्स बोलेंगे। एस्केप सीक्वेंस। Sometimes it is necessary to use characters that cannot be typed or have special meaning in C programming language. For example, new line, tab, question mark, etc. In order to use these characters, escape sequence are used. This is /b, it means backspace, /f, form field, /n, new line, /r, return, etc.
Slash n is used for a new line and the backslash causes escape from the normal way. The characters are handled by the compiler. Next one is string literals. A string literal is a sequence of characters enclosed in double quote marks. For example, good. गुड, ये गुड क्या है? स्ट्रिंग है। क्यों है? क्योंकि डबल कोटेशन मार्क में लिखी गई है। ऐसी ये जो है एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये भी कैसी स्ट्रिंग है? एक हमारे पास स्ट्रिंग है लेकिन जिसके अंदर स्पेसेस काउंट है, ये स्पेसेस है। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑफ 6 वाइट स्पेस। ये भी एक स्ट्रिंग है लेकिन ये स्ट्रिंग कैसी है? स्ट्रिंग कांस्टेंट हैविंग ए सिंगल कैरेक्टर and earth is round backslash n, it prints string with a new line. So these are the literals. Next one is operator. What is operator? Sorry. C language support a rich set of built-in operators. An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical manipulations. Operators are used in programs to manipulate data and variables. C operator can be classified into following types. First one is arithmetic operator, second one relational operator, third one logical, bitwise operator, assignment operator, conditional operator, and then special operator, etc. This is a symbol used to perform some operation on variables or operands or with the constant. Some operand require two operand to perform operation or some require single operations. Arithmetic operators. C language support all the basic arithmetic operators and these are plus addition to number या two operands, minus subtraction, asterisk multiply, slash divide डिवीजन के लिए, mod ऑपरेटर यानी रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर या माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीज इंटीजर बाय 1 या डिक्रीज इंटीजर बाय 1. These two operators are also called unary operators. Relational operators. Following are the relational operators in C language. Double equal, it checks if two operands are equal. Not equal, next one is not equal. If two operands are not equal, greater than, it check greater than a and a is greater than b, a is less than b, a is greater than equal to b or a is less than equal to b. Logical operator. C language support following three logical operators. Suppose a is equal to 1 and b is equal to 0. Then first one operator is logical AND operator. Logical AND किस तरीके से यूज करेंगे? देखिए, अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 तो किस तरीके से लिखेंगे? a and b इस तरीके से लिखेंगे हम a and b, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है तो a and b जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा? रिजल्ट फॉल्स. एंड ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट फॉल्स देगा जब दोनों में से, दोनों ऑपरेंड में से या दोनों वेरिएबल में से कोई एक फॉल्स होगा, यानी किसी एक की वैल्यू 0 होगी तो ये हमेशा वैल्यू कैसे देगा? फॉल्स देगा. अगर दोनों वेरिएबल या दोनों ऑपरेंड हमारे पास 1 1 है या इनकी वैल्यू 1 1 है तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा? ट्रू प्रोवाइड कराएगा. नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर. लॉजिकल और a और b इस तरीके से लिखते हैं और इनका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा इफ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 होगा. एक ही केस में रिजल्ट फॉल्स कराएगा जब a की वैल्यू भी 0 हो और b की वैल्यू भी क्या हो? 0. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर नॉट a इस तरीके से लिखते हैं इज फॉल्स. ये जस्ट इन्वर्टर की तरीके से काम करता है. इफ द वैल्यू ऑफ a इज 1 देन इट प्रोवाइड रिजल्ट 0. इफ द वैल्यू ऑफ a इज 0 देन इट प्रोवाइड रिजल्ट 1. Assignment operator. C language support following type of assignment operator which are as follows. Assignment, this one is assignment. Assign values from right side operand to left side operand. Means a is equal to b या a
असाइनमेंट ऑपरेटर बी, इस तरीके से बी इज असाइन टू ए, इस तरीके से लिखा ना, असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। तो राइट साइड ऑपरेंड कौन सा, बी, बी इज असाइन टू ए, इस तरीके से रीड करेंगे। नेक्स्ट है प्लस इक्वल, इट मीन्स इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट। a plus b equal to b is its means is as a equal to a plus b। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a is equal a plus b means a plus b is assigned to a। ऐसी माइनस इक्वल कैसे लिख सकते हैं, a is equal a minus b, या s को ऐसे लिख कर सकते हैं, a minus b is assigned to a। ऐसी a asterisk b is assigned to a। ऐसी ये है a डिवाइड बाई b इज असाइन टू a, और ये मॉडुलस ऑपरेटर है a मॉडुलस ऑपरेटर b इज असाइन टू a। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा एट बिट लेवल। दिस इज इंपॉर्टेंट, बिट लेवल। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल। दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो परफॉर्म shifting of bits from right to left or left to right. Bitwise operator are not applied to float or double data type. This is very important. Bitwise operator is not applied to float or double operators, and then its description. फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। दूसरा बिटवाइज और है। तीसरा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है। नेक्स्ट है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, नेक्स्ट है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आगे देखते हैं इनका वर्किंग। एक हमारे पास वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b। नाउ यूज करते हैं a बिटवाइज b, यूज करते हैं a बिटवाइज और b, और a एक्सक्लूसिव और b। देखिए किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। इफ a is 0 and b is also 0, then a बिटवाइज और, यानी बिट टू बिट कंपैरिजन होगा। अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है तो a बिटवाइज b जो रिजल्ट देगा वो 0 देगा। यहाँ पर 0 है, a 0 है, b 1 है, तो भी रिजल्ट 0 है। a 1 है, b 0 है, रिजल्ट 0 है। a 1 है, b 1 है, रिजल्ट 1। यानी बिट टू बिट कंपेयर करता है। a और b का रिजल्ट ये रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट 2 होगा। a एक्सक्लूसिव और b बोथ आर सेम, रिजल्ट 0। जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 तो रिजल्ट 0, और a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 तो रिजल्ट 1। If a is 0 and b is 1, or a is 1, b is 0, then it provide result 1 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। Now bitwise shift operator, shifting the bit value, the left operand specifies the value to be shifted and right operand specifies the number of positions that the bits in the value have to be shifted. Both operands have the same precedency. For example, a is equal to 0 0 0, ये एक नंबर है। ये नंबर किस तरीके से है, ये नंबर हमारा बिट लेवल पर लिखा गया है। नंबर एक्चुअली में 8 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 2 4 8, ये नंबर 8 है। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर को परफॉर्म कर रहे हैं। सो b is equal to 2, एंड देन हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया a लेफ्ट शिफ्ट b। a लेफ्ट शिफ्ट b मीन्स हम a को b टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं। b की वैल्यू कितना है 2, और a की वैल्यू आप देख ही रहे हैं। तो जब इस वैल्यू को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया जाएगा तो इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ऐसी इस a वेरिएबल को, यानी इस वैल्यू को जब 2 टाइम्स राइट शिफ्ट किया जाएगा तो इसकी न्यू वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। यानी बिट बाई बिट ये शिफ्टिंग होता है। नाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
C programming language has two operators, increment and decrement, to change the value of an operand, constant or variable, by 1. Increment plus plus increases the value by 1, whereas decrement minus minus decreases the value by 1. These two operators are unary operators, and its meaning they only operate on a single operand. Plus plus and minus minus operator as prefix and postfix. Suppose you use plus plus operator as prefix like plus plus variable, so the value of variable is incremented by 1, then it returns the value. समझिए इस चीज को. सपोज यू यूज प्लस प्लस ऑपरेटर एज ए प्रीफिक्स लाइक दिस. अगर आप इस तरीके से लिखते हैं प्लस प्लस वेरिएबल, तो द वैल्यू ऑफ वेर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. फर्स्ट इंक्रीज करेंगे वैल्यू एंड देन इट रिटर्न्स द वैल्यू. सपोज you use plus plus operator as postfix like this variable plus plus, so the original value of variable is returned first and then variable is incremented by 1. मीन्स पहली वैल्यू जो ओरिजिनल थी वो रिटर्न होगी और उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी वेरिएबल की, इंक्रीमेंटेड बाय 1. नाउ एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं. सपोज दैट ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर में इंटीजर वेरिएबल वैल्यू कितनी असाइन कर रखी है हमने 5. printf वेरिएबल प्लस प्लस printf प्लस प्लस वेरिएबल. आइए इसको हम एडिटर पर रन करके देखते हैं और वहीं पर इसको समझते हैं. इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है var नाम से, जिसकी वैल्यू 5 है. या हम ऐसे कह सकते हैं 5 वैल्यू को असाइन करा दिया गया है वेरिएबल को. हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, फर्स्ट लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं वेरिएबल प्लस प्लस. वेरिएबल प्लस प्लस का मतलब ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर. तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, फर्स्टली इट रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी है 5, तो ये 5 वैल्यू को प्रिंट करा देगा और प्रिंट कराने के बाद ये अपनी वैल्यू को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा. सेकंड देखिए प्रिंटफ, हम क्या प्रिंट करा रहे हैं प्लस प्लस वेरिएबल. मीन्स ये जो ऑपरेटर है ये पहले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और फिर वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा. तो दोनों चीज अलग अलग है. ये काम करता है, ये ऑपरेटर पहले वैल्यू को यूज कर लेता है फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, और ये वाला ऑपरेटर पहले वैल्यू को इंक्रीज कर लेता है और बाद में वैल्यू को यूज करता है. तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, जरा सोचिए. वेरिएबल की वैल्यू है 5, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सबसे पहले आप वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर लीजिए. तो वेरिएबल की वैल्यू को हमने यूज किया, तो सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए 5. सबसे पहले इस वेर की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए हमारे पास 5 प्रिंट होगा. अब जब स्टेटमेंट हो गया है रन, यानी इस वाले वेरिएबल में अपनी वैल्यू को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज कर दिया का मतलब ये हो गया कि इसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, अब 6 हो जाएगी. नाउ ये 6 वैल्यू फाइनल वैल्यू होगी किसकी, इस वेरिएबल की. अब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा कि प्लस प्लस वेरिएबल को प्रिंट करिए. तो नेक्स्ट में प्लस प्लस वेरिएबल को जब आप प्रिंट करेंगे तो ये ऑपरेटर क्या कहता है आपसे कि आप पहले वैल्यू को इंक्रीज कर दो. तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई थी वेरिएबल की वो कितनी थी 6 थी. तो इस वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 6 से क्या कर दिया 7 कर दिया. तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 5 और 7.
आइए देखते हैं रन करके इस प्रोग्राम को। सेव रन करते हैं, कोई एरर नहीं, कंपाइल लिखते देखो वैल्यू 5 एंड देन वैल्यू 7 ये आ गया, ये देख रहे हो। तो ये था प्रोग्राम। नाउ आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2। सपोज दैट वी राइट y is equal to x plus 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 x। अगर मैं ये लाइन लिख दूं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पर वैल्यू हम पेस्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? y is equal to x plus 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 प्लस प्लस एक्स, और प्रिंट किसको करा रहा हूँ? y को, और प्रिंट किसको करा रहा हूँ? x को। अब देखिए आपके पास स्टेटमेंट लिखा है y इज इक्वल टू x प्लस 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 एक्स, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है कितनी? 5। मैंने आपसे पूछा है कि y की वैल्यू बताइए। तो देखिए मेमोरी में एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम क्या है? x है। एक लोकेशन और है, उस लोकेशन का नाम क्या है? y है। इस x लोकेशन पर अभी वैल्यू कितनी रखी गई है? 5 रखी हुई है, और इस y लोकेशन पर कुछ भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अभी एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू अभी नहीं कैलकुलेट करी हमने, हम यहाँ मान के चलने की आपको गार्बेज वैल्यू होगी। नाउ इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो ये ऑपरेटर है आप रीड करो, क्या लिखा है? ये ऑपरेटर लिखा है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। तो x y इक्वल टू x पोस्टफिक्स ऑपरेटर मीन्स ये कहता है कि पहले x की ओरिजिनल वैल्यू आप यूज कर लो। तो x की ओरिजिनल वैल्यू मेमोरी में कितनी रखी हुई है? 5। तो ये 5 वैल्यू यहाँ पर आ गई। प्लस नेक्स्ट ऑपरेटर हम देख रहे हैं ये वाला, ये क्या कह रहा है? प्लस प्लस एक्स। ये कह रहा है कि मेमोरी में जो वैल्यू रखी हुई है, मेमोरी में क्या वैल्यू रखी हुई है? 5। इस वैल्यू को पहले आप अपडेट करो। तो हमने इस वैल्यू को हटा कर क्या अपडेट कर दी? 6। अब मेमोरी में देखिए, मेमोरी में x की वैल्यू कितनी हो चुकी? 6 हो चुकी। मीन्स हम ये कह सकते हैं x की फाइनल वैल्यू कितनी है? 6। x की फाइनल वैल्यू कितनी है? 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू जब आप यूज करोगे तो x की फाइनल वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ पर इस की जगह क्या यूज हो जाएगा? 6 प्लस इसकी जगह पर क्या यूज हो जाएगा? 6। तो x y की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो y की वैल्यू हो गई 12, तो यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया। नाउ अब इस एक्सप्रेशन को फिर दोबारा से आप रीड करो। इस एक्सप्रेशन में ये लिखा था कि इस x में जो x के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर था वो ये कह रहा था कि आप वैल्यू को यूज कर लो, मैं तो बाद में अपनी वैल्यू इंक्रीज करूंगा। और इसमें ये कहा कि पहले वैल्यू को आप इंक्रीज कर लो, फिर वैल्यू आप यूज कर लो। तो हमने वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और फिर वैल्यू को यूज करा दिया। ठीक है, वैल्यू अब यूज हो चुकी है, 6 + 6 हो चुकी है, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। नाउ ये ऑपरेटर ये कहता है अब मेरी वैल्यू को आप इंक्रीज करो। तो x की अभी वैल्यू कितनी थी? 6, और इस ऑपरेटर ने वैल्यू कितनी कर दिया? 7। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो चुकी है x की? 7, और y की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 12। आइए देखते हैं आउटपुट क्या कहता है। इस
इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। देखिए एक एरर है। क्या एरर है? अनडिक्लेयर फर्स्ट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वाई। वाई जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो सबसे पहले वाई को आप डिक्लेयर करें। वाई आपने यूज तो कर लिया लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर इंटीजर वाई भी लिखें। नाउ आप प्रोग्राम को सेव करें। सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करें। अब ये क्या अनडिक्लेयर फर्स्ट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको भी आप ठीक कर रहे हैं। अभी एक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वेर लिख रखा है भाई, तो ये वेर के लिए हमें क्या लिखना है? यहाँ पर एक्स लिखना है। देन सेव, फिर दोबारा कंपाइल करें। अब कोई एरर नहीं। डॉट स्लैश देखिए क्या वैल्यू आई? y की वैल्यू आई है 12 और x की वैल्यू कितनी आई है? 7। हमने क्या कैलकुलेट करी थी? y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 7। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अदर ऑपरेटर्स, सम अदर ऑपरेटर्स सच एज कोमा ऑपरेटर। तो कोमा ऑपरेटर आर यूज्ड टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशंस टुगेदर, और हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन डेटा, डेटा को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा इंटीजर ए कोमा, सेपरेट कर दिया किससे? सी से। ए कोमा ए अलग है, सी इक्वल टू 5 कोमा डी। अब सेपरेशन के लिए यूज किया गया वेरिएबल को, ए अलग, सी इक्वल टू 5 अलग एंड देन डी। और ये तीनों वेरिएबल कैसे हैं? इंटीजर टाइप के। नेक्स्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। The size of operator is a unary operator that returns the size of data, constant, variable, arrays, structure, etc. For example, समझते हैं एक प्रोग्राम है हमारे पास, इस प्रोग्राम का हम आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट किया, प्रोग्राम कॉपी कीजिए एंड देन प्रोग्राम को फिर पेस्ट करिए। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करें तो देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल ने मेमोरी में कितने बाइट की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया है। तो जैसे मेमोरी में हमने 3-4 लोकेशन डिफाइन किए हैं। एक लोकेशन का नाम ए है, एक लोकेशन का नाम बी है, एक लोकेशन का नाम सी है, एक लोकेशन का नाम डी। अब इसको ऐसे समझ लें, क्या था प्रोग्राम हमारे पास? प्रोग्राम ये था कि मेमोरी में ये 3-4 लोकेशन है जिसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके की लोकेशन है। ये पहली लोकेशन है, इसका नाम ए। ये दूसरी लोकेशन, इसका नाम बी। ये तीसरी लोकेशन है, इसका नाम है सी। ये लोकेशन है नेक्स्ट, इसका नाम है डी। ए जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएगा, बी फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएगा, सी डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएगा और डी जो है वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएगा। अब आप ये जानते हैं इंटीजर जो होता है वो 16 बिट की मशीन है, कितने बाइट की मेमोरी लेता है ये आपको अच्छे से मालूम है।
लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बतलाया था। फ्लोट कितने बाइट की लेता है, डबल कितने बाइट की लेता है और करेक्टर कितने बाइट की मेमोरी लेता है। मीन्स ये जो मेमोरी लोकेशन बना है ए के लिए कितने बाइट का बना होगा, 2 बाइट का। बी फ्लोट है 4 बाइट का बना होगा। सी करेक्टर है तो 1 बाइट का बना होगा। डी डबल है तो मे बी 4 बाइट का बना हो या मे बी 10 बाइट का बना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से लोकेशन क्रिएट हो जाते हैं। नाउ इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो देखते हैं इसका जो साइज आएगा ए बी सी और डी का कितने कितने का आएगा। सेम इस प्रोग्राम को रन करिए। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को रन कर दिया। सॉरी, ये रनिंग नहीं है, प्रोग्राम ओपन हो गया है, रन करिए। ये रनिंग देखिए, साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट्स, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट्स, साइज ऑफ डबल 8 बाइट्स, साइज ऑफ करेक्टर 1। तो ये मेमोरी में इंटीजर में कितने बाइट की मेमोरी ली, 4 बाइट्स की। इंटीजर के बाद फ्लोट ने 4 बाइट की, डबल ने 8 बाइट की, करेक्टर ने 1 बाइट की। ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट साइज है, क्योंकि ये मशीन पर डिपेंड करता है। मशीन का मतलब आप 16 बिट की मशीन यूज कर रहे हो या 32 बिट की यूज कर रहे हो या फिर 64 बिट की यूज कर रहे हो। तो मेरे पास जो मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, तो मैं 64 बिट के अकॉर्डिंग ही आपको साइज दिखा रहा हूँ। आगे देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। द कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। The conditional statement are the decision making statement which depend upon the output of the expression. It is represented by 2 symbols, that is question mark and then second one is colon. इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है। और इस टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम 2 सिंबल यूज करते हैं। फर्स्ट वन होता है क्वेश्चन मार्क और सेकंड वन होता है कोलन। A conditional operator works on 3 operands, so it is also known as ternary operator. The behavior of the conditional operator is similar to the if-else statement, as if-else statement is also decision making statement. सिंटेक्स क्या होगा कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का? एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। ये एक्सप्रेशन 1 में यहाँ पर कंडीशन लगी हुई होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है या ये एक्सप्रेशन ट्रू होती है तब तो वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्सप्रेशन 2 की। अगर ये एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फेल होती है तब असाइन हो जाएगा क्या एक्सप्रेशन 3। इस चीज को आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो इस वेरिएबल को क्या सेट हो जाएगा एक्सप्रेशन 2। अगर इस एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फेल होती है या फॉल्स होती है तब इस वेरिएबल को क्या सेट हो जाएगा एक्सप्रेशन 3। आइए देखते हैं इसी का एक प्रोग्राम कॉपी कर लिया है। इसको हम ले जाते हैं अपनी एडिटर पर। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमने क्या लिखा है? एज नाम का एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और हमने क्या पूछा है यूजर से एंटर योर एज। आप अपनी एज को एंटर करिए। स्कैनर के हेल्प से हमने एज को एंटर करवा दिया। एंड देन क्या चेक कर रहे हैं? एज इज ग्रेटर देन 18 विदाउट इफ। क्या लिखा है? एज इज ग्रेटर देन 18 क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ इलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 होती है तो सबसे पहले तो ये प्रिंट होगा। अगर सपोज दैट ये कंडीशन फेल होती है तो क्या प्रिंट होगा? ये मैसेज प्रिंट होगा। आइए देखते हैं इसको रन
एज, देखिए ये लिखा एंटर योर एज, हमने कहा हमारी एज है 25 एंड देन हमने किया एंटर एलिजिबल फॉर वोटिंग। आइए दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर योर एज हमने कहा 17, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करो कंडीशनल ऑपरेटर को, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आपकी ये रिवीजन क्लास का डे 4 है और आप अपना रिवीजन करते रहिए मेरे साथ साथ। थैंक यू।